میں آپ کو بتائیں موٹروے پر دھند کے ڈیرے حد نگاہ شدید متاثر۔ موٹروے M4 سب سیکٹر عبدالحکیم سے شیر شاہ تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہ پر حد نگاہ 60 سے 80 میٹر تک ہے۔ موٹرویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ دھند میں لائن اور لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث ہو سکتی ہے۔ ڈرائیورز حضرات فاگ لائٹس لازمی استعمال کریں۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں موٹروے پر دھند کے ڈیرے حد نگاہ شدید متاثر۔ موٹروے M4 سب سیکٹر عبدالحکیم سے شیر شاہ تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہ پر حد نگاہ 60 سے 80 میٹر تک ہے۔ موٹرویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ دھند میں لائن اور لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث ہو سکتی ہے۔ ڈرائیور حضرات فاگ لائٹس لازمی استعمال کریں۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ موسم کی تبدیلی شہریوں کی صحت پر بھاری۔ ملتان کے بڑے سرکاری اسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ اسپتالوں کے میڈیسن وارڈز میں مریضوں کا رش نزلہ، زکام، بخار، وائرل انفیکشن کی صورتحال اختیار کر گیا۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مریض وائرل انفیکشن کا شکار ہو کر سرکاری اسپتالوں میں رپورٹ ہونے لگے۔ ملتان میں موسم کی اچانک تبدیلی شہریوں کی صحت پر بھاری پڑنے لگی۔ نزلہ، زکام، بخار اور وائرل انفیکشن نے شدت اختیار کر لی، جس کے باعث شہر کے بڑے سرکاری اسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں۔ نجی اسپتال کے میڈیسن وارڈ 7، 8، 10 اور 11 میں گنجائش سے زیادہ مریض داخل ہیں۔ دیکھیں، جیسے ہی سردی بڑھی ہے تو نزلہ، زکام اور کھانسی کے جو کیسز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ نارملی ہر سال ایسا ہوتا ہے۔ تو میں عوام سے یہی کہوں گا کہ آپ پہلے سردی سے بچاؤ کریں اور اپنے ہاتھ جو ہے نا صابن سے بار بار دھوئیں، اور بھیڑ میں، رش میں فاصلہ رکھیں ایک دوسرے سے، اور اگر چھینک وغیرہ یا کھانسی لگی ہوئی ہے تو آپ ماسک کا استعمال کریں، اور جو ہے نا سودرنگ ایفیکٹ گلے کے لیے جیسے چائے، کافی، سوپ وغیرہ اس کا استعمال بڑھا دیں۔ گورنمنٹ شہباز شریف ہسپتال میں روزانہ 200 سے زائد مریض وائرل انفیکشن کے باعث لائے جا رہے ہیں، جبکہ چلڈرن ہسپتال میں سردیوں کے باعث نمونیا میں مبتلا بچوں کی تعداد بھی تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ نشتر 2 اور ساؤتھ سٹی ہسپتال کے علاوہ نجی کلینکس پر بھی درجنوں مریض روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وائرل انفیکشن میں اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وائرل انفیکشن 7 سے 14 دن کا ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ڈیفرنٹ وائرس کا ڈیفرنٹ سائیکل ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے جو ہوتا ہے جسم کو اگر بخار وغیرہ آ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، اس میں پیرنڈال اور جو ہے اینٹی الرجک دیتے ہیں، سودرنگ ایفیکٹ دیتے ہیں، اور ریسٹ کرتے ہیں، فلوئڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جب اس کا سائیکل پورا ہوتا ہے اس نے خود ہی ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے۔ اینٹی بایوٹک میرے خیال میں نہیں لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم انہیں سختی سے منع کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے شہریوں کو موسم کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری اینٹی بایوٹکس کے استعمال سے گریز کا مشورہ دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر رحمان، شیخ روحی، ملتان۔ بہاولپور میں آٹے کا بحران، خریدار پریشان۔ شہریوں نے ٹرکنگ پوائنٹس پر سرکاری ریٹ پر دستیاب آٹے کی کوالٹی کو ناقص قرار دے دیا۔ دوسری طرف ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نے آٹے کے بحران سے متعلق خبروں کی تردید کر دی ہے۔ بہاولپور میں آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا۔ 10 کلو تھیلا 900 سے بڑھ کر 1200، 20 کلو کا تھیلا 1950 تک پہنچ گیا۔ شہریوں نے ٹرکنگ پوائنٹس پر سرکاری ریٹ پر آٹا نہ ملنے کی بھی شکایت کی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جن ٹرکنگ پوائنٹس پر سرکاری ریٹ میں آٹا مل رہا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں۔ ٹرکنگ پوائنٹس پر سرکاری آٹا فروخت نہیں کیا جا رہا، صرف ڈسپلے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اگر وہ لگا ہوا تو ڈسپلے پہ ہے، وہ دیتے نہیں ہے کسی کو بھی۔ اور جو آٹا انہوں نے ہمیں مارکیٹ سے ہم جو آٹا اٹھا رہے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں 1200 روپے میں، اور جو 15 کلو کا جو آٹا اٹھا رہے ہیں وہ ہم اٹھا رہے ہیں 1850 میں۔ تو وہ ہمیں بہت، کل بھی ریٹ بڑھا ہے، پرسوں بھی ریٹ بڑھا ہے، روزانہ ریٹ بڑھ رہا ہے۔ ہوٹل مالکان کا کہنا تھا کہ گندم کے ریٹ میں مسلسل اضافہ کے باعث آٹا مہنگا ہو رہا ہے۔ آٹا مہنگا ہونے پر روٹی کے مقرر کردہ سرکاری ریٹ بھی بڑھنے چاہیے۔ سستے آٹا کے حصول میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ روزانہ تازہ 1 سے 1.5 کلو آٹا خریدنے والے مزدور طبقے کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آٹا بالکل غائب ہے، مافیا گروپ نے آٹا چھپا رکھا ہے، مافیا گروپ نے آٹے کا ریٹ مسلسل ڈیلی بڑھ رہا ہے۔ تو ہم ہوٹلوں والے پریشان ہیں، گھریلو مسئلے جو تازے والے ہیں 1 کلو آٹا لے کے جاتے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ ہم وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ اپنا یہ اس کے اوپر قابو پائیں۔ ادھر ڈی ایف سی ذوالفقار احمد کا کہنا تھا کہ شہر کے 10 سے زائد پوائنٹس پر آٹا سرکاری ریٹ پر دستیاب ہے۔ ملوں کو 3000 فی من ریٹ پر گندم جاری کی جا رہی ہے۔
मिलें सरकारी रेट पर आटा मुहैया करने की पाबंद हैं। 10 किलो आटे का थैला 910 और 20 किलो का थैला 1810 रुपए में दस्तयाब है। मैं शाह सकलैन के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में आटे के नर्ख में इजाफा, गंदम की बोरी की कीमत 11,000 रुपए तक पहुंच गई। मसनूई किल्लत के बाद शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। गंदम की बोरी के सरकारी निर्ख 7500 रुपए मुकर्रर है, मगर मार्केट में कीमत 11,000 रुपए तक पहुंच गई। चक्की मालकान आटा 120 से 130 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। शहरी कहते हैं महंगाई के बायस गरीब आदमी के लिए पेट पालना मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया है, उससे तो 8 गुना ज्यादा हो चुका है। देखिए 11,000 से भी मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर हम गरीब क्या करें, क्योंकि मेन जो चीज होती है खाने की, खासकर ये गंदम ही होती है। शहरियों का मजीद कहना है कि निर्खों में इजाफे की वजह से गंदम की जखीरा अंदोजी और मसनूई किल्लत है। आड़तियों को सरकारी निर्ख पर गंदम की फरोख्त का पाबंद किया जाए। गंदम के रेट दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले 10,000 हुई है, फिर 10,500 हुई है, अब 11,000, 11,200, 300 रुपए बिक रही है मंडी में। हम भी यहाँ पर पल्लेदारी वगैरह करते हैं और हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दी जाए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से खुद साख्ता महंगाई माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। मुजफ्फरगढ़ शहर में सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला तवील होने लगा। घरेलू सारिफीन हो या होटल मालकान, सभी को सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात का सामना है। होटल मालकान के मुताबिक बढ़ती महंगाई की वजह से सिलेंडर और लकड़ियां भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोयले की कीमत 130 रुपए फी किलो, जबकि लकड़ी 1400 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी। मुजफ्फरगढ़ में शदीद सर्दी के दौरान शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। सुई गैस की लोड शेडिंग बढ़ते ही खुश्क लकड़ी की कीमत में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं गुज़िश्ता साल 800 से 900 रुपए मन मिलने वाली लकड़ी इस साल 1400 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है। गैस तो पहले ही दस्तयाब नहीं, महंगाई की वजह से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। पहले ये तकरीबन 700 से 800 रुपए मन था, जब से सर्दियां हैं आज इसकी कीमत 1500 रुपए मन गई ठहरी है। गरीब आदमी है, कहाँ से लें लकड़ी? पहले तो गुजारा बसर हो रहा था, सस्ती थी। अब दूसरी चीजें भी महंगाई हो चुकी है, अब लकड़ी की कीमत में भी 1500 रुपए मन हो चुकी है, कहाँ से लें? शहरियों का कहना है कि टाल मालिकान लकड़ी के मन माने रेट वसूल कर रहे हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। गुज़िश्ता साल के निस्बत इस मरतबा लकड़ी की कीमत में 30 से 35% का इजाफा हुआ है। दिहाड़ी है जो 1000 रुपए है, 800 रुपए किलो घी है और 1500 रुपए मन लकड़ी है, कहाँ से पकाएं, बच्चों को क्या खिलाएं? शहरियों का मजीद कहना था कि सुई गैस दस्तयाब न होने से सर्दियों में मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। लकड़ी और कोयले की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आला हुकाम नोटिस लें तो खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रहीम यार खान के बाजारों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ने को तैयार। मॉडल बाजारों में शहरियों की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक कारें पहुंच गईं। मॉडल बाजार का जदीद तर्ज पर तामीराती काम तेजी से जारी। रहीम यार खान जिला इंतजामिया का शहरी सहूलतों में इजाफा के लिए ऐसा इकदाम। मॉडल बाजारों के लिए इलेक्ट्रिक कारें पहुंचा दी गई हैं, जिनके जरिए खरीदार, बुजुर्ग, शहरियों और खवातीन को आसान, महफूज, माहौल दोस्त सहूलियात फराहम की जाएगी। हमारे डीसी साहब ज़हीर अनवर जफ़ा साहब, उन्होंने इनको ना हमें 25 जनवरी तक डेडलाइन दी है कि बाजारों को कंप्लीट करें। होपफुली हम कर देंगे, क्योंकि मेजर काम हो चुका है, जो थोड़ा सा वापडा की वजह से आ रहा है हर्डन। और बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, पहुँच गई हैं। वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मकसद यही है कि जब हम लोगों को ट्रैफिक अंदर नहीं आने देंगे, कोई लेडीज़ ऐसी होती हैं, कोई बंदे ज़ईफ़ होते हैं, कोई बंदा वैसे भी आना जाना चाहे तो इन बाज़ारों में चलेंगी वो, तो उनके लिए बाकायदा हमने ना स्पेस दी हुई है। शैडों पे गमले भी होंगे और यहाँ सिर्फ पंखे नहीं और बेंच भी लगेंगे। जिले इंतजामी की ज़रिए निगरानी न्यू सादिक बाजार, अकब सादिक बाजार, जामा कादरिया रोड, अनारकली बाजार और तार घर वाली गली को मॉडल बाजारों में तब्दील किया जा रहा है। इन बाजारों को मुकम्मल तौर पर व्हीकल फ्री जोन बनाया जा रहा है, जहां पैदल चलने वालों को साफ सुथरा मुनज़्ज़म माहौल फराहम किया जाएगा। मॉडल बाजारों में टफ टाइल की तनसीब, फाइबर शीट्स की छतें, पंखे और शहरियों के बैठने के लिए आरामदेह बेंच भी लगाए जा रहे हैं, ताकि खरीदारी एक खुशगवार तजर्बा बन सके। रहीम यार खान की बाजार अब सिर्फ खरीदारी का मरकज नहीं, बल्कि तरक्की, सहूलत और जदीद शहरी मनसूबाबंदी की मिसाल बनने जा रहे हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। लोधरा में सिविल डिफेंस और इंतजामिया की गैस रिफिलिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। क्रैकडाउन के खिलाफ के दौरान गैस सेंटर मालकान दुकानें बंद करके रूपोश हो गए। इंतजामी एक्शन के बाद घरेलू सारिफीन को एलपीजी के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं 1 किलो गैस खरीदने के लिए भी शदीद मसाइल का सामना है।
जिला भर में इंतजामिया और सिविल डिफेंस हुकाम गैर कानूनी गैस रिफिलिंग सेंटर्स के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए। रिफिलिंग सेंटर्स को मुस्तकिल बुनियादों पर सील करके शहरियों के तहफ्फुज़ पर मबनी कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी तरफ इन कार्रवाइयों से मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के लिए घरों का चूल्हा जलाए रखना शदीद मुश्किल हो गया है। सार्फिन का कहना है कि इंतजामिया कार्रवाई जरूर करे, मगर ऐसे गरीबों का भी ख्याल रखे जो 12 किलो का घरेलू सिलेंडर नहीं खरीद सकते और अपनी बिसात के मुताबिक किलो 2 किलो गैस खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। गैस में पहुंचाई जाए या गैस दी जाए, हमारे चूल्हे ठंडे में पड़े हैं, सर्दियों का मौसम में गैस नहीं मिल रही हमें। सब दुकानें बंद हैं, परेशानी है बहुत ज्यादा, घर रोटी नहीं बन रही और ताज़ी 1 किलो 2 किलो गैस भरवानी होती है, वो दुकानें बंद हैं, कहाँ से भरवाएं। दिहाड़ीदार 700 रुपए दिहाड़ी लेता है, 200 रुपए का गैस दिलवा के 2 दिन का वक्त को पास करता है। मेहरबानी करें आप, हम गरीबों पर मेहरबानी करें। मारे फिरते हैं, कितों गैस नहीं मिलती पई, घर रोटी नहीं पकती पई, किलो 2 किलो वाले उन्हें मजदूरी करते, शाम को ताज़ी गैस भरवानी होती है। गैर कानूनी गैस रिफिलिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाइयों से इंतजामिया की कारकर्दगी और कानून की बालादस्ती वाज़ेह तौर पर सामने आई है। ताहम सार्फिन की अपील है कि इंतजामिया कानून की बालादस्ती के साथ साथ इनका चूल्हा जलाए रखने के लिए भी इकदामात करे। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। मुल्तान शहर के फ्लाईओवर्स पर नस्ब सेफ्टी वायर और पोल चोरी होने लगे। फ्लाईओवर्स के साथ लटकती बिजली की तारें भी शहरियों की जिंदगियां के लिए खतरा बन गई। जिले इंतजामिया खामोश, शहरियों ने हुकाम से मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुल्तान के फ्लाई ओवर्स पर करोड़ों रुपए मालियत के लगाए गए पोल्स और सेफ्टी वायर्स गायब। जिला इंतजामिया खामोश, नामालूम चोरों के मजे हो गए। शहरियों ने सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए हुकाम से मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। इंतजामिया का कोई पता नहीं है। इंतजामिया हालांकि यहाँ से डीसी या जो भी हैं गुजरते तो हैं, नजर भी आता है उनको, कई सालों से ये हो रहा है, लेकिन तवज्जो नहीं है। इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। आए रोज़ कोई ना कोई सान्या पेश आता है, तो वो वजह इसके पीछे अगर देखी जाए तो यही होती है। शेरशाह फ्लाई ओवर्स पर लोहे के जंगले के साथ बिजली की लटकती तारें शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बन गई। गिलानी, कचहरी चौक, कुम्हारा वाला, कलमा चौक और दीगर फ्लाई ओवर्स पर आए रोज तारें और पोल चोरी हो रहे हैं। शहरी कहते हैं लटकती तारों किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती हैं। ये हुकूमत ने लगाई थी आवाम की सेफ्टी के लिए, तो ये हादसे का सबब भी बन सकती हैं। ये तारें अक्सर लोग चोरी करके चले जाते हैं और नंगी तारें भी पड़ी हुई हैं, तो इनको सही किया जाए और भाई आवाम की देखभाल करें। शहरियों का मजीद कहना था कि सेफ्टी तारें और पोल लगाने का मकसद शहरियों की हिफाजत है। चोरी की रोकथाम के लिए इंतजामिया को कैमरे नस्ब करने चाहिए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला रोड का तामीराती काम 3 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। रोड डिवाइडर और ग्रीन बेल्ट का काम सुस्त रवि का शिकार, स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान है। मुल्तान का अहम हेड मोहम्मद वाला रोड 3 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। रोड डिवाइडर और ग्रीन बेल्ट की तामीर सुस्त रवि का शिकार है। स्ट्रीट लाइट्स के फुकदान के बायस रोड पर हादसात और डकैती की वारदातें भी मामूल बन गई हैं। शहरियों का कहना था कि कई सालों से इस रोड पर काम जारी है। इंतजामिया को कई बार दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कभी फंड्स का रोना रोया जाता तो कभी ये रोड सियासत की नजर हो जाता है। लैंड भी नहीं होते तो आपको जो ना 4 बजे 5 बजे हमको जाना पड़ता है, अंधारा हो जाता है, गाड़ियों को कोई समझ नहीं आते, लाइट कोई भी नहीं आती, आपको कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं। जैसे ये खड्डे शड्डे हैं, गाड़ियाँ खड्डे हो जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाए तो सारा रोड टूटा हुआ है। बस वो जो है ना दरिया का जो पुल है ना, उस पर कोई लाइटें शटर लगी हुई है, उससे और कुछ भी नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया से हेड मोहम्मद वाला रोड का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान की टूटी फूटी सड़कें शहरियों को परेशान करने लगी। गिलगश्त कॉलोनी की मेन सड़क अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार। शहरी कहते हैं गुज़श्ता 1 साल से सड़क इसी तरीके से टूट फूट का शिकार है, कोई पुरसाने हल नहीं। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी, मुल्तान शहर में अगर अक्सरियत शहरात की बात की जाए तो मुल्तान शहर की शहरात टूट फूट का शिकार रहती हुई दिखाई देती हैं। जहां एक जानिब मुल्तान शहर के बासी उड़ती धूल मट्टी से परेशान रहते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जो शहरात टूट फूट का शिकार हैं उनसे भी शहरी खुद अजियत के साथ साथ जो उनकी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, उनका भी नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त हम लोग गुलगश्त कॉलोनी के मेन गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ की अगर बात की जाए तो दिन के औकात में हज़ारों की तादाद में तालबात इस स्कूल में पढ़ने आती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बिजनेस हब भी है, दुकानें भी हैं, लेकिन यहाँ पर शहरात की जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर पत्थर, रोड़ा, मट्टी ये काफ़ी ज़्यादा शहरियों को डिस्टर्ब करती हुई दिखाई देती हैं और जो गुजरने वाले राहगीर हैं वो काफ़ी ज़्यादा
پریشانی کا شکار رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے شہری یہ مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور جلد از جلد درست اور بحال کیا جائے تاکہ یہاں سے گزرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اذیت میں مبتلا نہ ہو سکیں اور یہاں پر کاروباری حضرات جو ہیں وہ بھی ان کا کاروبار بھی اس اڑتی دھول اور مٹی سے متاثر نہ ہو سکے. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. ملتان شہر کا بھاولپور بائی پاس روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. خستہ حال سڑک پر سفر کرنے میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا. شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر متعدد حادثات ہو چکے مگر انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. ملتان کا بھاولپور بائی پاس روڈ انتظامیہ کی توجہ کا منتظر. واسا انتظامیہ نے 8 ماہ پہلے سیوریج لائن بچھانے کے لیے سڑک کھود دی تھی مگر تاحال اسے مرمت نہیں کیا جا سکا. 9 کلومیٹر ٹوٹے پھوٹے روڈ کا ٹکڑا شہریوں کی جان کا دشمن بن گیا. شہری کہتے ہیں سپیڈ سے آنے والی ٹریفک کو یکدم ٹوٹی پھوٹی سڑک کا سامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کئی حادثات ہو چکے ہیں. یہ تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے ہیں ایسے پڑا ہے اور آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوتا ہے. کبھی جانی مالی نقصان تو ضرور ہی ہے. رات کو دن کو جو دور سے گاڑی آ رہی ہے انہیں کیا پتا آگے جمپ ہے روڈ ٹوٹا ہوا ہے. ایک دم بریک لگانے سے آگے پیچھے گاڑی لگتی ہیں. نقصان ضرور ہے جانی مالی. تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے ہیں یہی حشر دیکھ رہے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ بھاولپور بائی پاس روڈ سے ہیوی ٹرانسپورٹ کا بھی گزرنا ہوتا ہے. اڑتی دھول کے باعث تاجر برادری دمے کی مریض بن چکی ہے. 12 مرتبہ ضلع انتظامیہ کو درخواست کر چکے ہیں مگر تاحال کوئی سنوائی نہیں ہوئی. سپیڈ سے گاڑی آتی ہے نا پیچھے والی جو گاڑی ہوتی ہے اس کو بہت مشکل ہوتا ہے. پتہ نہیں چلتا وہ آگے کھڈا ہے یا نہیں ہے. اس لیے جو مہربانی کریں آپ روڈ کی جو ہے نا بنا دیں آپ روڈ. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ فی الفور ٹوٹی پھوٹی سڑک کی تعمیر و مرمت کرائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. کیمرہ مین زین سہیل کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان. شہر اولیا کا سٹی پارک انتظامیہ کی توجہ کا منتظر. شہر کی پوش کالونی میں واقع سٹی پارک کی خستہ حال ہو گئی. پارک میں گھاس ہے نہ ہی شہریوں کے لیے واکنگ ٹریک موجود. علاقہ مکینوں کے لیے واحد تفریح گاہ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی. ملتان میں شہریوں کے لیے تفریحی سہولیات کی شدید کمی. انتظامیہ آبادی کے تناسب سے تفریحی پارک بنانے میں ناکام. شہر میں جو پارک موجود ہیں وہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حال ہو رہے ہیں اور شہریوں کا ورزش کرنا، بچوں نوجوانوں کا پارکوں میں تفریح نہ کرنا وقت کے ساتھ انتظامیہ کے لیے چیلنج بن رہا ہے. شہر کی پورش کالونی میں واقع سٹی پارک کی حالت انتظامیہ کی عدم توجہ کی باعث بد سے بدتر ہو گئی. علاقہ مکین کے لیے پارک میں نہ واکنگ ٹریک ہیں اور نہ ہی چلنے پھرنے کے لیے گھاس موجود ہے. علاقہ مکینوں کے لیے بنایا گیا واحد پارک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ اس پارک کی حالت ایک عرصے سے خراب ہے. مالیوں کے مطابق پارک میں زیر زمین بہت کچرا موجود ہے جس کی وجہ سے پارک میں گھاس نہیں اگتی. گھاس تو ہوتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہی نہیں. یہاں جو گھاس اس لیے نہیں ہوتا کہ نیچے کچرا ہے اس کے، اور ہے بھی کچرا ماننے کی بات ہے کیونکہ مٹی اس میں پڑے گی زیادہ تو پھر جا کے یہ پودے شودے یہ سیٹ ہوں گے. مٹی نہیں ہے نیچے اس کے. اب یہ کھڈے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھو، اس کے 1 فٹ نیچے جاؤ گے تو سارا کچرا ہے، شاپر وغیرہ. یہ 20 فٹ کھڈا ہوتا تھا، 20-30 فٹ کھڈا. انتظامیہ سٹی پارک کے مسائل کو فوری طور پر حل کرے تاکہ علاقہ مکینوں کو اچھی تفریح کے مواقع مل سکیں. کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان. چیف سیکیورٹی آفیسر ملتان ایئرپورٹ لیفٹیننٹ کرنل رضوان کا احسن اقدام. غیر ملکی خاتون مسافر کا قیمتی سامان لوٹا دیا. سامان میں پاسپورٹ، گرین کارڈ اور ملکی اور غیر ملکی کرنسی شامل. غیر ملکی خاتون قطر ایئر لائن کے ذریعے ملتان ایئرپورٹ پہنچی تھی. دستاویز ریکارڈ کے ذریعے خاتون مسافر کی تفصیلات حاصل کی. خاتون مسافر سے رابطہ کر کے انہیں ایئرپورٹ بلوا کر سامان حوالے کیا. آپ کو بتا رہے ہیں چیف سیکیورٹی آفیسر ملتان ایئرپورٹ لیفٹیننٹ کرنل رضوان کا احسن اقدام. غیر ملکی خاتون مسافر کا قیمتی سامان لوٹا دیا. سامان میں پاسپورٹ، گرین کارڈ اور ملکی اور غیر ملکی کرنسی شامل. غیر ملکی خاتون قطر ایئر لائن کے ذریعے ملتان ایئرپورٹ پہنچی تھی. دستاویزی ریکارڈ کے ذریعے خاتون مسافر کی تفصیلات حاصل کی گئیں. خاتون مسافر سے رابطہ کر کے انہیں ایئرپورٹ بلوا کر سامان واپس کیا گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حسن ملک سے. جی، ملتان میں اگر ایئرپورٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو ایئرپورٹ پر چونکہ عام روٹین میں بھی سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے جاتے ہیں اور مسافروں کی جو سامان کا چیک اینڈ بیلنس ہے اسے بھی رکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے تو ملتان ایئرپورٹ پر بڑا ہی ایک خوش آئند سا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس میں چیف سیکیورٹی آفیسر ملتان کی خصوصی کاوش کے ذریعے جو غیر ملکی خاتون تھیں ان کا قیمتی سامان گم ہو گیا تھا. تو
उन्हीं की खसूसी काविश की वजह से बाकायदा तौर पर एक टीम तश्कील दी गई थी जो कि उनके सामान में पासपोर्ट था, ग्रीन कार्ड था, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी थी, तो वो तमाम चीज़ें उस खातून तक वापस लौटा दी गई हैं। गैर मुल्की खातून जो थी वो कतर एयरलाइन के जरिए मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुंची थी और खातून का जो हैंड बैग था वो बेसिकली वहीं पर ही रह गया था, एयरपोर्ट पर ही। चूंकि सामान ज्यादा होता है तो वो काफी सारी चीजें मिस हैंडल हो जाती हैं, तो सेम उसी तरीके से वो गैर मुल्की जो खातून थी वो उनका जो हैंड बैग था जिसमें तमाम चीजें पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड और दीगर गैर मुल्की और मुल्की करेंसी भी थी, तो वो भूल गई थी। तो एयरपोर्ट का जो अमला है उन्होंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के जरिए चेक किया, फिर उसके बाद खातून से राब्ता किया गया और उनके बारे में सामान जो था वो उनके बारे में उनसे पूछा गया, तो वो उसी खातून का था। तस्दीक करने के बाद उस खातून को वो मुकम्मल तौर पर सामान एज इट इज उनके हवाले कर दिया गया है। बेसिकली ये देखा जाए तो ये प्रोफेशनलिज्म का एक तरीका है कि जिस तरीके से कोई मुसाफिर अपना सामान भूल गया तो उसे प्रॉपर तरीके से एज इट इज वो खातून तक वो उसे मुकम्मल तौर पर हैंड ओवर किया गया। तो ये बुनियादी तौर पर खातून ने भी पाकिस्तान की स्पेशली तारीफ की और जो अफसरान है उनका शुक्रिया अदा किया कि वो उनका सामान जो भूल गई थी, वो जो गुम हो गया था, वो एज इट इज उनके हवाले किया गया है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ अजला के डीसीज शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर हसन रजा ने ड्रिंक स्टेडियम में पैराफोर्स की भर्ती के इंतजाम का जायजा लिया। उधर डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने तारीखी मकाम पतन मीनारा की बहाली के इक़दामात का मुआयना किया। डीसी भावलपुर ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, जनरल बस स्टैंड और सिलानी दस्तरखान का भी मुआयना किया। डायरेक्टर पीएचए इमरान रफीक ने डीसी को ग्रीन बेल्ट्स और चौकों की तज़ीन व आराइश बारे ब्रीफिंग दी। डीसी का कहना था कि शहर की खूबसूरती के लिए तरक्याती काम जारी हैं। ग्रीन बेल्ट्स में बिजली के खंभों पर लाइट्स फाल की जा रही हैं। उधर डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान जहीर अनवर का तारीखी मुकाम पतन मनारा का दौरा। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन रंधावा से पतन मनारा की बहाली के इकदाम बारे ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पतन मनारा शहर की तारीखी शनाख्त और सकाफती विरसा है, इसे महफूज बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने चक 107 में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का भी दौरा किया। एमपी अली हैदर नूर नयासी की ज़ेरे सदारत तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास। डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मक्सी और मुतालिका अफसरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब में अली हैदर नूर नयासी ने कहा कि तामीर और तरक्की के मंसूबों को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस इल्तवा का शिकार मंसूबों के फंड्स बारे इदारों को लिखा जाए। बाजार के तामीराती कामों को स्पीड अप करके फौरी मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर ने एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी के हमरा सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर का कहना था कि शहर की खूबसूरती और शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्तान समेत मुल्क भर में साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 18वीं सालगिरह मनाई गई। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद भी किया गया, जिनमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। साबका वजीर आजम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 18वीं सालगिरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद। मरकजी तकरीब मुल्तान प्रेस क्लब में सजाई गई, जहाँ साबका मेंबर सूबाई असम्बली सैयद अहमद मुजतबा गिलानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर केक काटा गया और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत भी पेश किया गया। हम लोग सारे इकट्ठे हैं ताकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश कर सकें। ऐसी अजीम हस्ती जिसको सारी दुनिया मानती है, वो एक मुनफरिद इंसान थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बैनुल अक़वामी शख्सियत थे और उनके नज़रिए और सोच ने एक पूरे पिसे हुए तबकात को मुसावी तौर पर उनके हम कलम लाने पर जो किरदार अदा किया है वो तारीख का हिस्सा है। आज भी आप देखें कि न्यूयॉर्क का मेयर भी रोटी कपड़ा और मकान का नारा मार रहा है, और ये फलसफा और ये सोच कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी।
डिस्ट्रिक्ट बार हॉल में PLF ने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की सालगिरह तकरीब का इनेकाद किया। सदर PLF का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भुट्टो का अदालती कत्ल साबित कर दिया। जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, 1963 का आइन दिया और आलम इस्लाम को मुत्तहद किया। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की आज 98वीं सालगिरह है और आज वो शख्सियत पैदा हुई, भुट्टो खानदान में वो शख्सियत पैदा हुई जिसने पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया और जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और पाकिस्तान के जो जंग में जो जंगी कैदी थे वो जंगी कैदी भी वापस लाए और अपना जो रकबा गस्ब किया हुआ था भारत ने वो भी वापस लाए। सूबाई हल्का PP 218 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर महार इमरान के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। सरगोदा यूनिवर्सिटी शोबे मास कम्युनिकेशन के ज़ेरे तमाम सेमेस्टर असाइनमेंट्स पर खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने अपने तख्लीकी और तहकीकी प्रोजेक्ट्स पेश किए। सेमिनार के इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। सरगोदा यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में सेमेस्टर के इख्तिताम पर असाइनमेंट पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के दौरान तलबा और तालिबात ने अपनी अपनी असाइनमेंट पर मबनी प्रोजेक्ट पेश किए, जिनमें शुरका ने भरपूर दिलचस्पी ली, जिनमें डिजिटल और प्रिंट मीडिया से मुताल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल थे। तलबा ने जदीद मीडिया के रुझानात, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के मौसर इस्तेमाल, सोशल मीडिया के असरात और प्रिंट मीडिया की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर असातिज़ा ने तलबा की मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि ऐसे तालीमी प्रोग्राम तलबा की इल्मी तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं। मेरे जो प्रोजेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ सरगोदा, बेसिकली मैं अपने शाहीनों के शहर सरगोदा की पीछे हिस्ट्री बताना चाहती हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, इसलिए मेरे प्रोजेक्ट का नाम हिस्ट्री ऑफ सरगोदा है। मेरा प्रोजेक्ट कंपनी पार्क के ऊपर था, जो सरगोदा की एक पहचान है और हिस्टोरिकल प्लेस है। हमें इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी आगे फर्दर इन चीज़ों को मजीद कंडक्ट करे। असातिज़ा ने तलबा की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें मुस्तकबिल में भी तहकीकी और तख्लीकी काम जारी रखने की तलकीन की। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख अदनान, रोही, सरगोदा। रहीम यार खान के बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट की गहमा गहमी जारी। मुल्क भर से 39 टीमों की शिरकत ने इवेंट को कौमी रंग दे दिया। अल्फ्रेड क्रिकेट टूर्नामेंट में 16वें रोज यूनाइटेड क्रिकेट क्लब लियाकतपुर और माची गोट क्रिकेट क्लब में टाकरा हुआ। मैच में यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ने 4 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली। रहीम यार खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में क्रिकेट का रंगारंग मेला जारी। अल्फ्रीद क्रिकेट टूर्नामेंट के 16वें रोज यूनाइटेड क्रिकेट क्लब लियाकतपुर और माछी गोट क्रिकेट क्लब आमने सामने आए। यूनाइटेड ब्लू क्रिकेट क्लब ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए मैच 4 विकेट से जीत लिया। माछी गोट मकबूल क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग की और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 139 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में यूनाइटेड ब्लू क्रिकेट क्लब ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया और 18.4 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। यूनाइटेड ब्लू के अली ने 43 गेंदों पर शानदार 56 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने शानदार खेल पर खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी। खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट से न सिर्फ नए टैलेंट को सामने आने का मौका मिलता है, बल्कि रहीम यार खान खेलों का नया मरकज भी बनता जा रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे फील्डिंग करना, किसी पे मतलब के बैटिंग करना और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। मकबूल क्रिकेट क्लब ने 3 ओवर में 24 रन किए हैं, बगैर विकेट गिराए। अच्छी विकेट है, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऐसा टूर्नामेंट देखा ही नहीं है, पहली दफ़ा हम खेलने आए हैं और ऐसे लग रहा है पूरे पाकिस्तान से प्लेयर आए हुए हैं। अल्फ्रीद क्रिकेट टूर्नामेंट में मुल्क भर से 39 टीमें शरीक हैं और ये 25 रोजा इवेंट जनूबी पंजाब में क्रिकेट के फरोग, नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब और खेलों का म्यार बुलंद करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।